Just to make this sentence. Soumya, is it visible to you? You are mute, Soumya. Juhi ji, is it visible to you? Yes, sir. It is completely visible to me. Uh, this sentence. यस सर. क्या आपने कुछ पूछा? Okay, thank you. चलो एक एक करके कोशिश करते हैं. Let's try one by one. Who wants to try first? Sir, I have to make this sentence. Very good. This sentence is this sentence is related to past simple tense. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the helping verb, and the helping verb is did. Correct. Then I will take subject. The subject is Lipstick. then I will take the subject, and the subject is you. Then I will take adjective or noun, and the adjective or noun is think. Thereafter, lastly, I will take extension, and the extension is lastly, I will put full stop, and the sentence is did you uh, sorry sir, sorry sir, can I try one more time please? Of course, you can try again. क्या आपने कुछ Try. Try again. I have to make this sentence. This sentence is related to past simple tense. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the helping verb, and the helping verb is did. Thereafter, I will take the subject, and the subject is you. Then I will take an adjective or noun, and the adjective or noun is ask. Lastly, I will take the extension, and the extension is something. At the end, I will put full stop, and the sentence is did you ask something? Well tried. But it is not correct. Anybody else want to try? Yes, sir. Judy ji, very good. Sir, this is past. This sentence is related to past simple tense. This is an inverted sentence. इन्वर्टेड सेंटेंस पिछली बार हम भूल गए पूछना सौम्या से. आपसे पूछ लेते हैं. कैसे पहचाना कि ये इन्वर्टेड सेंटेंस है? सर, इसमें सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब है इसलिए. नहीं, ये जवाब तो गलत हो गया. ओके सर. सर सर
चलिए कोई बात नहीं, इस बार हम सौम्या से पूछ लेते हैं। सौम्या, तुमने कैसे पहचाना था कि ये इन्वर्टेड सेंटेंस है? सर इस सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द लगा है? एब्सोल्युटली करेक्ट, शुरू में क्या नाम का शब्द लगा? तो इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का नियम बताओ सौम्या। सर इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का नियम है कि सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठाकर सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। वेरी नाइस। सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठा के सब्जेक्ट के सामने रख देते हैं या पहले रख देते हैं। गुड। अब हम फिर से वही बात कर लेते हैं सौम्या तुमसे। हमने नीचे पुराना सेंटेंस लिखा है, मैंने सोचा। इज इट विजिबल टू यू सौम्या? यस सर, इट इज विजिबल टू मी। थैंक यू। अब सौम्या इसमें सौम्या, व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? सर आई इज द सब्जेक्ट इन दैट सेंटेंस। Very good. Thank you. And what is the helping verb in this sentence? Sir, there is no helping verb in that sentence. There is no helping verb. And what is thought in this sentence? Sir, thought is verb in that sentence. This is not appropriate answer from me. Sir, B1. Thought is B1 in that sentence. No, Uh, sorry, sir. Tony, B2. Thought can is you? B2 in that sentence. Sorry, sir. Okay, it will do. एक बार थोड़ा बाकी लोग जो बोर हो रहे हैं उनसे पूछ लेते हैं। जूही जी, what is thought? थॉट इज V2 वर्ब का दूसरा। क्या है? थॉट वर्ब, थॉट क्रिया का दूसरा रूप है, थिंक क्रिया का दूसरा रूप है। थैंक यू। अब आप यही सवाल पूछिए सोनिका। सोनिका, व्हाट इज थिंक और व्हाट इज थॉट? सॉरी। Thought is the second form of the verb. थॉट क्या है? Thought क्रिया का दूसरा रूप है। सोनिका आगे बढ़ाते हैं। साक्षी, what is thought? Thought is second form of the verb. Thought क्या है? Thought क्रिया का दूसरा रूप है। माहिदी, what is thought? Thought is second form of the verb. दी, thought क्या है? Thought क्रिया का दूसरा रूप है। Means rest. I am rest. Mia, what is thought? Thought is second form of verb. Thought क्या है? Thought क्रिया का दूसरा रूप है। Who is rest? What is rest? Sir, what is thought? किसी का भी नाम लेके पूछ लो बेटा। सोनिका दीदी, what is thought? Thought is the second form of the verb. Thought क्या है? Thought क्रिया का दूसरा रूप है। तो सौम्या,
चलो तुमसे चर्चा करते हैं। नियम कहता है कि सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठा के सामने रख देंगे। तो सौम्या, क्या हम यहाँ ऐसा कर सकते हैं? थॉट आई। No, sir. तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे क्या करते हैं? हमने पिछली बार बताया था, याद करो। Sir, helping verb लेते हैं, did. कोई शब्द बताया था, किसी को याद हो तो बताओ। Helping verb borrow करते हैं। हाँ, वेरी नाइस, थैंक यू। बोरो करते हैं, उधार लेते हैं। तो हम यहाँ डिड उधार ले रहे हैं और उससे प्रश्न बनाएंगे, क्योंकि यहाँ सहायक क्रिया है ही नहीं। तो एक बार फिर से यहाँ से शुरू करो सौम्या। सौम्या, तुमने पूरा बना लिया था ना? Sir, can I try one more time, please? You can try because nobody else is trying. You can try. I have to make this sentence. This sentence is related to past simple tense. It is an inverted sentence. Firstly, I will take the helping verb, and the helping verb is did. Thereafter, I will take the subject, and the subject is you. Then I will take V1, and the V1 is ask. बेटा सौम्या, पास्ट सिंपल का फॉर्मूला तो कहता है कि यहाँ V2 आना चाहिए, क्रिया का दूसरा रूप। सर लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ V1 ही आता है। क्यों? सर आई डोंट। चलो हम बताते हैं। एक्चुअली दोस्तों, वो Sir, can I try one more? Can I try once? सेंटेंस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी। हम एक आपको जानकारी देने जा रहे हैं। अच्छा बन रहा है सेंटेंस। सौम्या, डिड इज विजिबल टू यू? नो सर। इट इज नॉट विजिबल। सोनिका, आपने अपना मोबाइल ऐसे Yes, किया हुआ sir. है? It is visible. और ये Zoom करके देखो. यस सर, नाउ इट इज विजिबल। I have changed the color. Which color is this? Sir, red. So the visibility of red is low. The visibility of red is low. तो हमने यहाँ पे did उधार लिया है, और जो did है दोस्तों, वास्तव में वो काय का दूसरा रूप है। डू। डू। डू का दूसरा रूप है। और तीसरा रूप क्या है डू का? Done. डज। Done. डन। डू, डिड और डन। तो दोस्तों, अब हमने सेकेंड फॉर्म उधार लिया हुआ है, तो दो सेकेंड फॉर्म एक साथ नहीं आ सकते। आप लोगों को स्कूल में ऐसा बताया गया होगा, सिखाया गया होगा कि डिड लगाते ही ये जो सेकेंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म में बदल जाता है। डिड लगाते ही सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदल जाता है। शायद ऐसा सिखाया गया होगा, सिखाया गया था स्कूल में, कॉलेज में। यस और नो? किसी को भी? Yes, sir. सिखाया था. हाँ, लेकिन कभी सोचा विचारा कि ऐसा क्यों होता है? आज समझ में आया कुछ कि नहीं?
कुछ तो बोलो, यस या नो तो बोलो, या मुंडी ही हिला दो। यस सर, आ गया। तो डिड जो है सेकेंड फॉर्म है क्रिया का, दूसरा रूप है। तो जैसे हम यहाँ डिड रखेंगे, ये जो दूसरा रूप है, ये दो सेकेंड फॉर्म नहीं रख सकते हम, इसलिए एक सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो चूंकि ये सेकेंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगा, पहला रूप आएगा। तो सौम्या, तुम यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई थी, अब ये रखो। Then I will take first form of verb, and the first form of verb is ask. बेटा आर्टिकल लगाओ। Then I will take the first form of verb. द फर्स्ट फॉर्म ऑफ, फिर एक और लगेगा। The first form of the verb, and the verb is लगेगा। ask. Then I will स्पेलिंग ask, ask. अब तुमने Then I- बिल्कुल सही कर लिया सौम्य। तुम लोग के जहन में बी चैप्टर की प्रोसेस ज्यादा अच्छे से आत्मसात हो गई है। ये बी चैप्टर नहीं है, दिस इज नॉट बी चैप्टर, दिस इज पास्ट चैप्टर। अब आगे then I will take the objective, and the objective is something. ऑब्जेक्टिव नहीं है, जूही जी बताइए अनम्यूट करके। Object. Then I will take the object. Sorry sir. नाउ रिपीट। Then I will take the object, and the object is something. At the end, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सभी लोगों से चर्चा कर लेते हैं। तुमने समथिंग बोला, मान्य कि यहाँ पे समथिंग ले क्या? क्योंकि हिंदी में तो कुछ शब्द आ रहा है, कुछ। तो आप बताइए, आपको यहाँ कौन सा शब्द अच्छे लगे? Anything. ठीक है, स्नेहा तुम बताओ, तुम्हें कौन सा अच्छा लगेगा? Anything. सर समथिंग यानी थोड़ा थोड़ा ना? हाँ, दोनों का अर्थ एक ही होता है। समथिंग यानी भी कुछ होता है, और एनीथिंग यानी भी कुछ, दोनों का एक ही अर्थ। हाँ, समथिंग समथिंग बोलेंगे तो फिर थोड़ा थोड़ा। जूही जी आप बताइए कौन सा ले ले दोनों में से? Sir, something. I thought. समथिंग लेते हैं, थैंक यू। म्यूट कर लीजिए सोनिका। Anything. एनीथिंग, थैंक यू। और यहाँ पे हमें बाकी लोग दिख नहीं रहे हैं। हु इज रेस्ट, प्लीज स्पीक समथिंग। तो वो लोग आए सामने। I am rest. Sir, साक्षात आप। something is suited better. समथिंग, वेरी गुड, थैंक यू। म्यूट कर लीजिए। हु इज रेस्ट, हु एल्स इज रेस्ट? Sir, I am rest. हाँ यार, तुम बताओ साक्षी। Sir, something. चलो, थैंक यू। हु एल्स इज रेस्ट, पीछे और कोई है जो हमें स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है? चलो, कोई नहीं बोल रहा है, मतलब कोई नहीं है, ठीक है। तो सौम्या, इन सबको सुनने के बाद आप किस नतीजे पर पहुंची? sir, I think both are correct. दोनों का अर्थ तो एक ही होता है, कुछ, है ना? तो तुम्हें बताओ, तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है? समथिंग अच्छा लग रहा है, एनीथिंग की एनीथिंग, या समथिंग? Sir, I think anything is more appropriate. अच्छा, तो चलो अब हम बताते हैं, म्यूट करके सुनना। दोस्तों, अच्छा लगने से कुछ नहीं होता है। अच्छी तो हमें मर्सिडीज भी लगती है। तो कुछ नियम कानून है,
उससे चलेंगे। तो इस छोटे से सेंटेंस में हमने तुम्हें एक ग्रामर का महत्वपूर्ण नियम बताने के लिए इसको बनाया सेंटेंस को। तो सुन लो दोस्तों, ये तुम में से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सौम्य, एम आई क्लियरली ऑडिबल ना? Yes, sir, you are clearly audible. एम आई लाउड और लो? No, sir. ओके, आई एम Clear. एब्सोल्युटली बैलेंस्ड। ओके, थैंक यू। तो बच्चों सुनना, जो लोग भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, या वो माताएं भी ध्यान से सुने जो अपने बच्चों को पढ़ाना है जिनको, और पिताजी भी जैसे साकेत है, तो बच्चे के सबको समझाने के लिए आपको काम में आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी सकारात्मक वाक्य में, समथिंग, समबडी, समवेयर, समवन जैसे शब्द आ सकते हैं। किसमें आ सकते हैं सब में? Affirmative sentence में. अफर्मेटिव। और अगर सेंटेंस इन्वर्टेड है या नेगेटिव, तो उसमें एनीथिंग, एनीबडी, एनीवेयर, एनीवन जैसे शब्द आ सकते हैं। काय में आ सकते हैं सोनिका? इन्वर्टेड सेंटेंस में। और ठीक है, एंड नेगेटिव सेंटेंस में। और सौम्य, जो तुम्हारा सेंटेंस है वो कौन सी श्रेणी का है? Sir, inverted. इन्वर्टेड है। तो इन्वर्टेड में जिसमें एनी लगता है, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, एनीवेयर, ग्रामर की दृष्टि से आ सकते हैं। फिर बोलचाल में आपको जो बोलना है बोलो। तो सौम्य, यहाँ क्या ले लें ऑब्जेक्ट में? Anything. फुल स्टॉप लगा दे सौम्य? Yes, sir. फुल स्टॉप लगाएंगे क्या सौम्य? Sir, question mark. क्वेश्चन मार्क। बोलो भारत माता की। हाँ, कौन बोला? माने जी का बेटा बोला। तुम लोग इसको लिखते भी जाना, और हम क्वेश्चनिंग शुरू कर रहे हैं। मैं देखना अभी इसमें कितना मजा आता है। गड़बड़ भी होगी और गड़बड़ में भी मजा आएगा, ठीक है? हम तुमसे पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर तुम मान्या जी से करना, मान्या जी सोनिका से करेंगी, फिर सोनिका की जिससे मर्जी हो, ठीक है? और सौम्य, आंसर अफर्मेटिव देना है, सकारात्मक, ठीक है? सेम क्वेश्चन कर रहे हैं हम। सौम्य, डिड यू आस्क एनीथिंग? No, sir, I didn't ask अरे anything. नहीं यार, इसमें तो सब लफड़ा कर लिया। हम जो मान्या जी से पूछते हैं, मान्या जी, डिड यू आस्क एनीथिंग? Yes, sir. I asked something. क्या आपने कुछ पूछा? हाँ सर, मैंने कुछ पूछा। थैंक यू। अब अफर्मेटिव आंसर ही देना है। आप सोनिका का नाम लें। सोनिका, आप जूही जी से पूछना। Sonika, did you ask anything? Yes, Di, I asked something. क्या आपने कुछ पूछा? हाँ दी, मैंने कुछ पूछा। साकेत भैया, did you ask anything? Yes, I asked something. साकेत भैया, क्या आपने कुछ पूछा? हाँ सोनिका, मैंने कुछ पूछा। सौम्या, did you ask anything? Yes, I asked something. सौम्या, क्या आपने कुछ पूछा? हाँ, मैंने कुछ पूछा। साक्षी दीदी, did you ask anything? Yes, I asked something.
क्या आपने कुछ पूछा? हाँ मैंने कुछ पूछा। माहिंदी यू आर डन? आर यू डन? Yes, Sakshi, I'm done. ओके। तरुण डिड यू आस्क एनीथिंग? Yes, I asked something. तरुण क्या आपने कुछ पूछा? हाँ मैंने कुछ पूछा. Sir, all are done. तरुण आई एम रेस्ट। I'm also rested. Juvi Didi, did you ask anything? Yes, I asked something. जुवी दीदी क्या आपने कुछ पूछा? हाँ मैंने कुछ पूछा. स्नेहा, did you ask anything? यस आई आस्क समथिंग। क्या आपने कुछ पूछा? हाँ मैंने कुछ पूछा। एनीबॉडी इज रेस्ट? सौम्या दीदी, मान्या मान्या दीदी, I'm I'm done. Okay, you can ask. डिड यू आस्क एनीथिंग? Yes, I asked something. क्या आपने कुछ पूछा? हाँ मैंने कुछ पूछा. It's a Laura rest. All are done. डन, थैंक यू. अब हम नया राउंड शुरू करते हैं. इसमें आपको राइट ब्रेन का प्रयोग करना होगा दोस्तों, यानी थोड़ा सा सोच समझ के क्रिया रखनी होगी. क्रिया बदलना है. हम यहाँ वर्ब के नीचे क्रॉस लगा, लेकिन आप इसमें कोई सी भी क्रिया नहीं रख पाएंगे दोस्तों. सोच समझ के रखना पड़ेगी. ऐसी क्रिया रखनी पड़ेगी जिसके साथ एनीथिंग फिट हो जाए. एनीथिंग फिट होना चाहिए. तो हम शुरू कर रहे हैं. जिससे गलती होगी उसको कोई दंड नहीं है, उसको क्रिया बस बदल देना पड़ेगा. तो सौम्या से ही शुरू करते हैं. सौम्या, डिड यू से एनीथिंग? चलो हम बदल देते. मान्या जी से पूछते. मान्या जी से ही शुरू किया था हमने राउंड. मान्या जी, डिड यू से एनीथिंग? Yes, sir, I said something. हमने जानबूझ के ये क्रिया इसलिए पूछी कि हम चेक करना चाहते थे कि से का सेकंड फॉर्म पता है या नहीं. ठीक है. अब हम हिंदी कर देते हैं. आई एम कंप्लीटिंग द प्रोसेस. मान्या जी, क्या आपने कुछ कहा? Yes, sir, मैंने आप कुछ कहा. बस इतना सही है. अब आप वर्ब चेंज करना है. आपको फिर से नई वर्ब रखना है, जिससे भी पूछना. Soumya, did you think anything? ये तो यहाँ पे हो गई है. अरे ये सेंटेंस गलत लिख दिया है ना. पहले हमने दिया था कि आपने कुछ सोचा, ऐसा. सोचा. Yes, sir. चलो ठीक है. आप कोई सी और वर्ब ले लीजिए, वो यहाँ आ गई. या चलो ठीक है, इसको आगे बढ़ा दो. पूछ लिया मान्या जी ने. सौम्या, यस में आंसर दे. Yes, I thought something. समय तुमने क्या आपने कुछ सोचा? हाँ मैंने कुछ सोचा. सोनिका दीदी, did you read something? Yes, I read something. क्या आपने कुछ पढ़ा? हाँ मैंने कुछ पढ़ा. जूही दीदी, did you do anything? Yes, I did something.
जूही दीदी, क्या आपने कुछ किया? हाँ, मैंने कुछ किया। ओके, हु इज लेफ्ट? मान्या, यू आर डन ना? सौम्या, yes. सौम्या, आई एम सौम्या, डन। you are done? Okay, I'm done. Saket. यस। Okay, Saket. Did you speak anything? यस मैडम, आई स्पोक समथिंग। आपने कुछ बोला? हाँ, मैंने कुछ बोला। तरुण, डिड यू हैव समथिंग? डिड यू हैव एनीथिंग? यस आई हैड समथिंग। तरुण, क्या आपने कुछ खाया? हाँ, मैंने कुछ खाया। हु इज रेस्ट? I'm dressed. साक्षी दीदी, डिड यू स्टडी एनीथिंग? Yes, I study something. साक्षी दीदी, क्या आपने अ, कुछ अध्ययन किया? अब देखिए दोस्तों, ये हिंदी बोलने में कितना अजीब लग रहा है। ये वर्ब यहाँ फिट नहीं है। तरुण शुड चेंज द वर्ब। तरुण को क्रिया बदलनी चाहिए। डिड यू स्माइल एनीथिंग? हाँ, अब देखिए ये कैसा लग रहा है, सोच के देखिए। क्या आपने कुछ मुस्कुराया? डिड यू टीच एनीथिंग? साक्षी दीदी, डिड यू टीच एनीथिंग? Yes, I teach anything. Yes, I teach something. ये देखो, अब आप वो पहाड़ के Sorry. नीचे। हम्म। अब आया साक्षी दीदी, पहाड़ के नीचे। क्या आपने कुछ सिखाया? बेटा, उनका आंसर ही गलत है। तुम 3 का दंड दो। बिल्कुल बेहोश रहते हो। जो 3 का दंड। और तुम देख नहीं रहे हो, हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। बोल 1 सेकेंड। पता नहीं कैसे। एक तो देर से आते हो और ले रिमूव कर दिया हमने। हमने उसको रिमूव कर दिया। हु इज रेस्ट? I am rest. लेकिन प्रश्न तुम तक पहुंचा नहीं है। अच्छा ये बताइए, तरुण से प्रश्न किसने किया था? सर, मैंने। तो आप एक और नई क्रिया ले लो साकिब, और स्नेहा से पूछिए। स्नेहा, Sir, डिड यू वांट एनीथिंग? Uh, कम अगेन। डिड यू वांट एनीथिंग? नहीं, ये नहीं जम रही है बेटा। स्नेहा, ये इसका प्रैक्टिकल थोड़ी हो रहा है। हमने शुरू में ही बोला था कि सोच समझ की क्रिया रखनी पड़ेगी। ये इसमें जम नहीं रही है। इनको चेंज करना पड़ेगा। डिड यू क्रिएट एनीथिंग? yes, I create anything or something. Sorry. ये जो कम अगेन। गलती हो रही है ना दोस्तों, इसी के लिए हम ये राउंड खेल रहे हैं। प्लीज कम अगेन। Yes, I create something. क्या आपने क्या आपने कुछ रचना की? हाँ, मैंने कुछ रचना की। साकिब, कैसा अजीब सा लग रहा है ना। साहित्यिक हाँ, हिंदी। साक्षी, कुछ साकिब। बनाया। हाँ, क्या आपने कुछ बनाया? ऐसा कुछ। क्या स्नेहा, क्या आपने कुछ बनाया? हाँ, मैंने कुछ बनाया। अब स्नेहा, तुम साक्षी से पूछो। साक्षी, did you play anything?
Yes, I played something. क्या आपने कुछ खेला? हाँ, मैंने कुछ खेला. Sir, can I ask you? हाँ, प्लीज आस्क मी। Sir, did you earn something? No, sir. सॉरी। Did you earn anything? ये मान्य जी आप देख रहे हैं, ध्रुवी जी देख रहे हैं ना, ये एनीथिंग समथिंग का जब तक सही अभ्यास नहीं होगा, इसलिए हम खिलवा रहे हैं ये राउंड, और अभी मजा नहीं आया, अभी हम इस राउंड को कंटिन्यू करेंगे। हाँ, कम अगेन प्लीज। Sir, did you earn anything? यस, आई अर्न समथिंग। सर, क्या आपने कुछ कमाया? हाँ, मैंने कुछ कमाया। हम आगे बढ़ रहे हैं इसको लेकर। हमने मान्या जी से पूछा था। मान्या जी, आर यू रेडी? हम जानबूझ के ये वाली वर्ब ले रहे हैं, सेट कर रहे हैं। Yes, डिड sir. यू रीड एनीथिंग? Yes, sir. I read something. दोस्तों, आप में से किसी को याद है कल परसों रीड के सेकंड फॉर्म को भी रीड पढ़ रहा था, कोई बोल रहा था? अगर याद आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। सर, ये लास्ट वीक की बात है. हाँ, तीनों की स्पेलिंग एक सी होती है, लेकिन सेकंड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं, थर्ड फॉर्म को रेड बोलते हैं। रीड, रेड, रेड। तो हम एक काम करते हैं, इसी सेंटेंस को पूरा घुमाएंगे मान्या जी से। अब आप वर्ब मत बदलिएगा, ताकि सबके जुबान पे सेकंड फॉर्म एक बार आ जाए और 5-6 बार वो लोग सुन लें। डिड यू रीड एनीथिंग? Yes, sir. I read something. चूंकि दूसरा राउंड चल रहा है दोस्तों, तो क्या थोड़ा सा एक्सटेंशन मैं बढ़ा दूं? Yes, sir. आपसे ना बने आप मत बढ़ाइएगा। मान्या जी, डिड यू रीड एनीथिंग स्पेशल इन द न्यूज़पेपर टुडे? Yes, sir. I read something special in the newspaper today. क्या आज आपने अखबार में कुछ खास पढ़ा? हाँ सर, मैंने आज अखबार में कुछ खास पढ़ा. सौम्या, did you read anything special in the newspaper today? Yes, I read something special in the newspaper today. क्या आपने न्यूज़पेपर में आज कुछ खास पढ़ा? हाँ, मैंने अखबार में आज कुछ खास पढ़ा. सोनिका दीदी, did you read something special in the newspaper today? Sorry, Sonika didi, did you read anything special in the newspaper today? Yes, Soumya, I read something special in the newspaper. Incomplete answer. Yes, Soumya, I read something special in the newspaper. Incomplete. Extension. Yes, Soumya, I read something in special in the बेटा, कम newspaper. अगेन नाम का इंटरेक्टिव सेंटेंस याद है कि भूल गई? Come again, Soumya. Did you read anything special in the newspaper today? Yes, Soumya, I read something special in the newspaper today. क्या आपने आज अखबार में कुछ खास पढ़ा? हाँ, मैंने आज अखबार में कुछ खास पढ़ा. बेटा एक सेकंड रुको, सुनो। स्नेहा, तुम भी इस चीज को स्वीकार करो और प्रयोग करो। सॉरी बोलने से हो सकता है किसी को बुरा लगे, लेकिन कम अगेन बोलने से किसी का भी बुरा नहीं होता, सबका भला होता है। कैसे? सौम्या को पूरा की पूरा सेंटेंस दोबारा बोलने का अवसर मिला, कॉन्फिडेंट हो गई सौम्या।
बाकी जितने लोग सुन रहे हो उनको पूरा की पूरा सेंटेंस दोबारा सुनने को मिला, उनका भी फायदा। तो कम अगेन बोलने से फायदा ही फायदा है, इसलिए तो कम अगेन सबसे पहले शुरू में सिखा देते हैं। तो कम अगेन बोलने से बिल्कुल ना हिचकिचाए, डू नॉट hesitate at all using come again. Okay, thank you, Soumya. Please go ahead. Sakshi, did you did you read anything special in the newspaper today? Yes, I read something special in the newspaper today. साक्षी, क्या आज तुमने कुछ न्यूज़पेपर में कुछ खास पढ़ा? हाँ, मैंने आज न्यूज़पेपर में कुछ खास पढ़ा। साकिब भैया, डिड यू रीड एनीथिंग स्पेशल इन द न्यूज़पेपर टुडे? Yes, I read something special in the newspaper today. भैया, क्या क्या आपने आज न्यूज़पेपर में से कुछ खास पढ़ा? हाँ साक्षी, मैंने आज न्यूज़पेपर में कुछ खास पढ़ा। स्नेहा, did you read some anything special in the newspaper today? Yes, I I I read something special in the So newspaper. बेटा, Come again, Sneha. तुम्ही ने पिछली बार ये गलती की थी, अब हमें याद आ गया, तुम्ही ने की थी ये। साकिब, yes sir. जूही जी अगर रेस्ट हो तो उनसे पूछिए। ठीक, जूही मैडम, did you read anything special in the newspaper today? Yes, I read some. Sorry, Sakit, come again, please. Na? Did you read anything special in the newspaper today? Yes, I read something special in the newspaper today. Yeah, go ahead. Complete the process, please. Complete the process. क्या आपने कुछ आज न्यूज़पेपर में कुछ स्पेशल पढ़ा? हाँ, मैंने अखबार में आज कुछ स्पेशल पढ़ा। ये तोता किसके यहाँ बोल रहा है भाई? क्या सर? तोता बोल रहा है ना? यहाँ तो नहीं है। Juhi ji, please go ahead. Ask Sneha. Sneha is resting. Okay, Sneha, did you read something special? Sorry. Sorry, sir. इसी की प्रैक्टिस कराना है, इसीलिए खेल रहे हैं बेटा। Did you read anything special in the newspaper today? Yes, yes, I read Sorry, beta. something. Come again, please, beta. Yes, I read. Sorry, sir. हाँ, फिर से बोलो. Come again. Yes, I read something. Come again, please, beta. I read, read. Something special. कम अगेन एक बहुत अच्छा सेंटेंस है भाई। Yes, I read. Sorry, beta. फिर से. Come again. Yes, I read. No.
एक्चुअली जूही जी आपको कम अगेन नहीं बोलना चाहिए था, कम अगेन अच्छा ओके ये अभी इस समय। और हमने आखिरी में इसीलिए उसके ऊपर लेकर आए हैं ताकि उसने इतनी बार सुन लिया हो हमने फोन नहीं किया उसने कल। सर कल गेस्ट आ गए थे कोई। सर यही है ना, यस आई रीड समथिंग। तुम क्या कह के बुलाती हो जूही जी को? आंटी बोलती हो? हाँ आंटी यानी मम्मा की फ्रेंड है। तो एक बार बोलो ना, जूही आंटी प्लीज कम अगेन बोलो। आंटी प्लीज कम अगेन। Did you read anything is did you read anything special in the newspaper अभी पूरा नहीं हुआ, वन today? वर्ड। Sorry. Yes, sir. यस आई रीड Sorry. डिड यू। आप एक बार साक्षी से पूछ लीजिए जूही जी। Okay, Sakshi. Did you read anything special in the newspaper today? Yes, I read something special in the newspaper today. क्या आपने अखबार में स्पेशल पढ़ा? Come again, दी। क्या आपने आज अखबार में कुछ स्पेशल पढ़ा? हाँ, मैंने अखबार में कुछ स्पेशल पढ़ा आज। अरे वाह, क्या शब्दों का क्राउड है। सॉरी सर। प्लीज हाँ, प्लीज मैंने आज अखबार में कुछ खास पढ़ा। अब साक्षी तुम एक बार सौम्या से पूछो, क्योंकि तुम्हारी आवाज क्लियरिटी है नहीं, सौम्या की आवाज क्लियर थी। सौम्या स्नेहा से पूछे। Soumya, did you read anything special in the newspaper today? Yes, I read something special in the newspaper today. सौम्या, क्या आज तुमने न्यूज़पेपर में कुछ खास पढ़ा? हाँ, मैंने आज न्यूज़पेपर में कुछ खास पढ़ा। स्नेहा दीदी, did you read anything special in the newspaper today? यस आई रेड। सर मेरे को क्वेश्चन पूछना था। रेड रेड बोलते हैं ना, तो सर ट्रांसलेशन में तो फिर रेड कैसे बोलेंगे? बेटा हम तुम्हारा सवाल समझ नहीं पाए, अच्छे से पूछो जरा, अच्छे से पूछो, लड़िया के पूछो। हाँ। सर रीड 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 बोलते हैं ना हम लोग हाँ। क्रिया के में, तो इसमें ट्रांसलेशन में रेड रेड आ रहा है, रेड बोल रहे हैं, तो इसका सर रीड ही बोलते हैं। अच्छा ये बताओ, हमने ये वर्ब लिखवाई है कि नहीं? यस सर। हमने नहीं लिखवाई होगी, सर मैडम ने आपने भेज दी आप होगी, भेजे थे है ना? स्टार्टिंग में। यस। तो चलो एक बार हम इसको तुम्हें लिखवाते हैं, ठीक है? सौम्या, have you written this sentence? Yes, sir, I have written that sentence. Should I erase? Yes, sir, you should erase. Thank you. चलो अब हम पूछते हैं साकेत से। साकेत, what should be the verb for पढ़ना? The verb for पढ़ना should be read. पढ़ने के लिए क्रिया क्या होना चाहिए? पढ़ने के लिए क्रिया रीड होना चाहिए। थैंक यू।
अब तुम मान्या जी से पूछो कि रीड की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए इंग्लिश में। मान्य जी, व्हाट शुड बी द स्पेलिंग ऑफ रीड? The spelling of read should be READ. इंग्लिश। रीड की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? रीड की स्पेलिंग READ होनी चाहिए। मान्या जी, आप किसी और से सेकंड फॉर्म पूछो कि दूसरा रूप क्या होना चाहिए इंग्लिश में। Juidi, what should be the second form of read? The second form of read should be read. Read का दूसरा रूप क्या होना चाहिए? Read का दूसरा रूप read होना चाहिए। अब आप तीसरे फॉर्म के लिए आप सेकंड फॉर्म की स्पेलिंग पूछिए किसी से। Okay, Soumya, what should be the spelling of third form of read? सेकंड फॉर्म ऑफ रीड। Second form of read. Sorry, sir. Second form of read. The spelling of second form of read should be READ. Hindi. चाहिए हिंदी करना No, चाहेंगे? no, sir. स्नेहा से पूछ लेते हैं। स्नेहा, इसका हिंदी करवाएं कि नहीं? No, sir. ओके, इट विल डू। Yes, sir. अब ये यस सर तुम जो बोलती हो ना, इसी में तुम्हारी कमजोरी आ जाती है। चलो हम साकेत से पूछते हैं। साकेत, इट विल डू? Sir, and done. साकेत, इट विल यस डू? सर, यस सर, इट विल डू। चलेगा? यस सर, बिल्कुल चलेगा। अब पूछो स्नेहा से। स्नेहा, इट विल डू? Yes, Saket, sir. It will do. स्नेहा, चलेगा ये? Yes, sir, चलेगा। अब पूछना किसको है? सर मुझे पूछना। तुम्हें पूछना है? पूछो किसी और से। साक्षी से पूछ लो या सोनिका से पूछ लो। सोनिका इज रेस्ट। Sonika Didi, what should be the third form of read? The third form of read should be read. सॉरी, Sonika, come again. The third form of read should be read. Read. Sorry. सौम्या किसी और से पूछ लो। मान्या जी से पूछ लो। Manya Didi, what should be the third form of read? The third form of read should be read. मान्या जी, स्पेलिंग पूछ ली। Yes, sir. Sakshi, what should be the spelling of read? The spelling of red should be READ, red. अब साक्षी तुम स्नेहा से पूछो, व्हाट शुड बी द प्रोनाउंसिएशन ऑफ थर्ड फॉर्म? Sneha Didi, sir. Sneha Didi, what should be the pronunciation of third form? The third form of pronunciation should be read. READ. ले जवाब तुमने दे तो दिया स्नेहा, थोड़ा बहुत गलत हुआ। सर वो अभी कंफ्यूजन अभी पूरा हुआ सर, नहीं तो रीड रीड ही पढ़ते हैं। थैंक यू बोलो। कोई बुला रहा है? चले जाओ। हाँ, चले जाओ। गुड। तो यहाँ 5वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मान्या जी से फिर कुछ और वर्ब लेते हैं। अभी अच्छी वर्ब आई नहीं, लेकिन दोस्तों आपको याद है हमने आपको चेतावनी दी थी कुछ दिन पहले कि अगर आप दूसरी वाली स्पीच नहीं देते हैं तो सेकेंड फॉर्म पे आपकी अच्छी पकड़ नहीं आएगी और वो यहाँ चरितार्थ होगा। स्नेहा, कौन बुलाने आया था?
मम्मा है। क्या चाय पीने को बोल रही थी? नहीं सर, वो कहीं अभी प्रोग्राम बन गया है, तो वही बोलने आए थे आपकी क्लास कब तक चलेगी, तो मैंने बोला 15 या 20 मिनट्स तक चलेगी। अरे तुम्हें जाना है तो चले जाओ ना, इसमें वीडियो क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग में देख लेना। नहीं सर वो मेरा ही टॉपिक चल रहा है ना, रीड एंड रेड। तो मैंने बोला स्नेहा को हम संबोधित जरूर कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग सुनिएगा। दोस्तों, इंग्लिश में ये समस्या इसलिए है क्योंकि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ बेगर्स, इट इज सेड। अंग्रेजी को भिखारियों की भाषा भी कहा जाता है। आर यू सरप्राइज्ड टू लिसन? और आप देख रहे हैं वो क्यों समझा जाता है? बेटा स्नेहा, म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। एक्चुअली अंग्रेजी का अपना शब्दकोश बहुत कम है दोस्तों। उन्होंने यहाँ से मांग के, वहां से मांग के, इधर से उधर से मांग मांग के उन्होंने अपने शब्दकोश को बढ़ाया है। उन्होंने अपनी वोकेबलरी जो बढ़ाई है वो कहीं लैटिन से लिया है, कहीं किसी भाषा से, हिंदी के भी कई शब्द लिए हैं, तुम लोग आश्चर्य करोगे। संस्कृत से भी लिए हैं। बताएं क्या एक दो? जैसे हमारे यहाँ एक दोहे में बोला जाता है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बुराई करने वालों को पास में रखिए और उनके लिए एक घर भी बना दीजिए, क्वार्टर बना दीजिए और उनको नजदीक में रखिए। अब निंदक नियरे, नियरे से ही नियर लिया है अंग्रेजों। लालटेन से लैंटर्न लिया है अंग्रेजों ने। आप बाजार से अभी जब लाइट वाइट चली जाती है तो वो एक बैटरी वाली आती है, उसको लेकर आओ, उसके डिब्बे पे लिखा रहता है लैंटर्न, और हिंदी में हम लालटेन बोलते हैं। और हिंदी के अस्पताल शब्द से अंग्रेजों ने हॉस्पिटल लिया है। मूल शब्द अस्पताल है, संस्कृत का है, और उससे उन्होंने बना लिया हॉस्पिटल। तो बहुत से शब्द हिंदी से भी लिए गए। आगे हम और बताएंगे आपको, कि आप एक शब्द और सुन के बहुत आश्चर्य करोगे। बल्कि हमें याद रहा तो हम आपको उसकी फोटो खींच के भेजेंगे डिक्शनरी की। और आप में से जिसको भी अभी याद रहे, वो क्लास समाप्त होने के बाद व्हाट्सएप में एक रिमाइंडर डाल देना कि सर आपने कुछ हिंदी से संबंधित बताने के लिए बोला था, ऐसा लिख के भेज देना। या तो फिर वो हरा बटन दबा के वॉइस मैसेज भेज देना। वैसे टेक्स्ट मैसेज भेजोगे तो जल्दी दिख जाता है, तो हम पढ़ के वो फोटो आपको भेजेंगे, आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। हिंदी के बहुत सारे शब्द ले लिए अंग्रेजी में। चलिए हम अगला राउंड शुरू करते हैं। हमने मान्या जी से शुरू किया था, कुछ और वर्ब देखते हैं। मान्या जी, डिड यू कॉम्प्रीहेंड एनीथिंग? Yes, sir. I comprehend something. Come again. Sir, I comprehended something. So there you are. क्या आपने कुछ आत्मसात किया? हाँ सर, मैंने कुछ आत्मसात किया। आगे सर अगर बढ़िए। मैं यहाँ हिंदी में बोला कि मैंने बहुत कुछ आत्मसात किया। आप अभी मत बोलिए, एक्चुअली हम बता देते हैं, लेकिन अभी हम जो मूल फोकस कर रहे हैं वो अभी आप महसूस भी कर रहे होंगे, सभी लोग महसूस कर रहे होंगे कि हमें समथिंग लगाने की इतनी आदत है कि हम हर जगह समथिंग लगा देते हैं। तो अभी हमारा मूल फोकस है कि प्रश्न में एनीथिंग आ रहा है और आंसर में समथिंग आ रहा है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, इस तरह के सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। सौम्या भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जाएगी, सोनिका जाएगी, ये जितने युवा लोग हैं, ये जो लोग स्कूल कॉलेज में हैं, साथी, तो इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब बहुत आ सकते हैं और आपको अपने बच्चों को बताने के भी काम में आएगा। तो आप जो बोलना चाह रही हैं, एक बार हिंदी फिर से बोलिए, हम बता देते हैं उसको कैसे बोलेंगे।
यस सर, मैंने बहुत कुछ आत्मसात किया है। हाँ, इसको ऐसे बोलेंगे, यस आई कॉम्प्रीहेंडेड अ लॉट। इसमें ऑफ नहीं लगेगा, आखिरी में अगर ये लगता है तो अ लॉट। ठीक है, ओके सर। अब सौम्या, आगे। डिड यू कॉम्प्रिहेंड एनीथिंग? Yes, I comprehended something. क्या आपने कुछ आत्मसात आत्मसात किया? हाँ, मैंने कुछ आत्मसात किया। साकिब भैया, did you comprehend something? Did you comprehend anything? यस, Yes, Soumya, I comprehended something. भैया, क्या आपने कुछ आत्मसात किया? हाँ सौम्या, मैंने कुछ आत्मसात किया। सोनिका, डिड यू कॉम्प्रीहेंड एनीथिंग? अरे यार तुम लोग कॉम्प्रीहेंड को आगे बढ़ा रहे हैं, चेंज करवाना। मान्य जी आप नई वर्ग में फिर से राउंड। कैन आई स्टार्ट? यू कैन। यस सर, आई एम रेडी। हाँ, मान्य जी first। सौम्या, डिड यू हाइड एनीथिंग? हाइड एनीथिंग? Yes, I hide something. Hided something. सब Sorry. धान सॉरी। पसेरी होए। हमारे यहाँ एक कहावत है गांव में, सब धान एक पसेरी नहीं होए। मान्य दीदी Who कम is अगेन ready? प्लीज। जूही जी, सर, आई एम आप रेडी। आंसर देंगे? हाँ, जूही जी आंसर देंगे। Manya, question please come again. डिड यू हाइड एनीथिंग? Yes, I hid something. स्पेलिंग आ गई भाई सीसी में। कंप्लीट द प्रोसेस। दीदी, क्या आपने कुछ छुपाया? हाँ, मैंने कुछ छुपाया। सर, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करूं? चेंज द क्वेश्चन। कर लीजिए। Did Sonika, did you reach anywhere? Sir, I'm right. करेक्ट। Yes, Juhidi, I reached somewhere. वेरी नाइस। आपको कहीं पहुंचना है? हिंदी इज रॉन्ग। कम अगेन। Did you reach देखिए आपके anywhere? पेज में लिखा होगा सेंटेंस, पेज में हिंदी लिखा है, वो जो अभी हमने मिटा दिया। आप मैंने कुछ जो सोचा ना सेंटेंस अभी सर। अपन ने बनाया है जूही जी, वो हिंदी पढ़ी है ना, वो लिखा है आप कि कहीं नो सर। अच्छा वो मिस हो गया। यस सर। आप लोगों ने रजिस्टर अच्छा मेंटेन नहीं किया है, बनाया नहीं। नो सर, मैं बाद में maintain- वीडियोस देख के मेंटेन करती हूँ उसको, मतलब इस समय नहीं लिखती हूँ। डिड यू रीच एनीवेयर? तुम्हें कहीं पहुंचना है या तुम कहीं पहुंचे? प्रश्न पूरा प्रश्न की तरह कीजिए आप, प्रश्न डिड नहीं। यू यस सर, डिड यू रीच? हिंदी इज रॉन्ग, इंग्लिश इज राइट। ओके, आप कहीं अरे ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न आपसे नहीं शुरू होता है। डिड यू प्रश्न आपसे नहीं शुरू होता है, उत्तर शुरू होता है आपसे। तुम कहीं पहुंचे, ऐसा होगा सर। अच्छा मैं आपको मना कर दिया। सॉरी सर।
हम लोग हिंदी में भी प्रश्न नहीं करते हैं, ये हमारी कमी है। हिंदी में भी हम कभी प्रश्न नहीं करते। मैं कहीं पहुंची सर, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं होगा सर। बहुत पॉइंट इज, कठिन है डगर हिंदी की। हिंदी इंग्लिश को कठिन सोचते आ रहे थे, इंग्लिश तो बनने लगी, हिंदी। क्या तुम्हें पहुंचना है, ऐसा कुछ होगा क्या सर? यहाँ तो ठीक हो गया, बधाई। क्या तुम्हें पहुंचना है, क्या तुम्हें कहीं पहुंचना है? सॉरी। ये हैव टू में बनने वाला सेंटेंस क्या है। क्या तुम कहीं पहुंचे? हाँ, क्या सो तुम दी। कहीं पहुंचे? हाँ दी, मैं कहीं पहुंची। वही रहना, लौटना नहीं है। साकेत भैया, जूही जी डिड म्यूट। यू assume anything? वेरी नाइस। Yes, Sonika. I assumed something. सॉरी। I assumed something. हाँ, हमें इन सुनाई दे रहा। भैया, Complete the क्या process. आपने कुछ कल्पना की? हाँ सोनिका, मैंने कुछ कल्पना की। सौम्या, did you start anything else? Yes, I started anything else. Come again, Soumya. Please come again. Yes, I started something else. हाँ, सौम्या, क्या आपने कुछ और शुरू किया? वेरी नाइस। हाँ, मैंने कुछ और शुरू किया। साक्षी दीदी, did you bring anything from anywhere? वाह। Yes, I bring anything from anywhere. Come again. सौम्या ने जानबूझ के पूछा था। बहुत कठिन है डगर हिंदी। अब आया उन पहाड़ के नीचे। दूध नहीं पिएगा तो ऐसे ही होगा। ये एक ऐड आता था। अब तुम्हें व्यक्ति बदलना पड़ेगा, उससे नहीं बनेगा बेटा। Who is rest? या ऐसा पूछ लो, हु इज रेडी। Who is ready? I am ready. Okay, Manya ji. Come again, please, with your question. Did you bring anything from anywhere? Yes, I brought something from somewhere. क्या आप कहीं से कुछ लाई? हाँ सौम्या, मैं कहीं से कुछ लाई। हु इज रेस्ट पूछ लीजिए माने। Who is rest? No one. साक्षी उदेलिया लेफ्ट। ओके, यू कैन आस्क साकेत। Saket sir, did you act anything? Please come again. Did you act anything? Yes, I acted something. Complete the process, please. क्या आपने कुछ कार्य किया? हाँ, मैंने कुछ कार्य किया। अब ये सेंटेंस हिंदी में तो अच्छा लग रहा है दोस्तों, लेकिन इंग्लिश में ये प्रैक्टिकल नहीं। हमने बीच में नहीं टोका कि पूरा सवाल जवाब हो जाए, फिर बताएंगे।
एक्ट वर्ब का प्रयोग आपने बहुत अच्छे किया, हमने लिखवाई है, इस बात की खुशी हुई। सर एक्सक्यूज मी फॉर सॉरी फॉर इंटरप्शन, या ऐसे बोलेंगे क्या आपने कुछ प्रस्तुत किया? हम आपको बता दे रहे हैं, आप 1 मिनट के लिए म्यूट कीजिए। दोस्तों, ऐसी स्थिति में हमें डू को क्रिया बनाना पड़ता है और वर्ग को नाउन की तरह प्रयोग करना पड़ता है। जो सौम्या जी पूछना चाहती हैं वो हम सौम्या जी से ही पूछते हैं, उनको जवाब भी मिल जाएगा और हम पूरा राउंड फिर सबसे सेम टू सेम करवा देंगे। सौम्या जी, डिड यू डू एनी इम्पॉर्टेंट वर्क? यहाँ हम वर्क को नाउन के रूप में ले रहे हैं और डू को मुख्य क्रिया के रूप में ले रहे हैं। और हमारा सेंटेंस आपको बड़ा प्रैक्टिकल लग रहा होगा। आई एम रिपीटिंग, डिड यू डू एनी इम्पॉर्टेंट वर्क टुडे? Yes, I did any important. यहाँ पे फिर वही दिक्कत आ गई जिसका हम इतनी देर से अभ्यास कर रहे थे। The same problem has come here. Sir, I did something important. नहीं, हमने अच्छा, हम मेरे सवाल को किसने ध्यान से सुना जो उत्तर दे सकता है, बताइए। This is the problem. Sir, you said, did you do any important work? हाँ, So, I did any important work. सौम्या ने वहां से, हाँ सौम्या, Yes, I did some important work. बेटा एक्सटेंशन इज रेस्ट। Sir, please repeat your question. Okay, I'm repeating. Your network is not supporting. Sir, can I try? You can start it. Yes, I did some important work today. Yes. क्या आज आपने कोई महत्वपूर्ण कार्य किया? हाँ सर, आज मैंने कोई महत्वपूर्ण कार्य किया। अब साकिब, सेम टू सेम क्वेश्चन करना है, लेकिन पहले पूछ लो हु इज रेडी। Who is ready? I am I'm ready. ready. Sonika, After after you. After you, Sonika. Okay. Sonika, did you do any important work today? Yes, I did some important work today. सोनिका, क्या आज आपने कोई महत्वपूर्ण कार्य किया? हाँ, मैंने आज कोई महत्वपूर्ण कार्य किया। जूही दीदी, did Yes. you do any important work today? Yes, I did some important work today. दी, क्या आज आपने कोई महत्वपूर्ण कार्य किया? हाँ, मैंने आज कोई महत्वपूर्ण कार्य किया। Okay, Manya. Did you do any important work today? Yes, Dee, I did some important work today. क्या आपने आज कोई महत्वपूर्ण कार्य किया? हाँ दी, मैंने आज कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए। हिंदी में तो पता नहीं। Anybody rest? पूरा पूछने की आदत डालिए। इज एनीबॉडी रेस्ट? ऐसा। Okay, is anybody rest? सौम्या उदेनिया लेफ्ट। दोस्तों, आज हम यहाँ क्लास को विराम दे देते हैं। आज अपना काफी अच्छा क्वेश्चनिंग आंसरिंग राउंड चला, लेकिन जो कुछ हमने आंसर दिए हैं दोस्तों वो प्रैक्टिकल नहीं थे। आप आंसर करेंगे आखिरी में ये सुन के, लेकिन हम कल आपको बताएंगे कि इसके प्रैक्टिकल उत्तर कैसे देते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। Thank you, sir. Thank you, sir.